Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 3rd, Class 5th, Chapter number 19, okay? And the chapter number 19 is A Seed Tells a Farmer's Story, okay? Students, today we have to read from page number 176, okay? Page number 176. So let's start. This is video second, okay? Video 2, all right? Video 2 of chapter number 19, okay? So let's start, students. Here are one question. So let's see first. Find out about the crops, cereals, vegetables, pulses that are grown in your area. Of those, is there anything that is famous across the country? Okay, अब आपको बताना है, पता लगाना है about the crops, उन फसलों के बारे में, cereals अनाज, vegetables सब्जियां, pulses दाल, that are grown in your area जो आपके इलाके में उगाए जाते हैं. Of those, is there anything that is famous across the country? Okay, और स्टूडेंट्स, क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज़ उगाई जाती है जो दूर दूर तक फेमस है, प्रसिद्ध है? अक्रॉस द कंट्री, हमारे देश के कई जगहों पर जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और साग सब्जियां उगाए जाते हैं. क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज़ उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर है? ओके, तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि आपके इलाके में जो भी फसल उगाई जाती है. ओके, सो यू कैन से दैट वीट, ओके, वीट, मेज, पल्सेस, वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस. ओके, मसूर दाल है, उड़द दाल है, ऑल राइट. दैट्स थिंग्स आर ग्रोन इन आवर एरिया. ऑल राइट स्टूडेंट्स, एंड कुछ क्या आपके अक्रॉस द कंट्री कोई ऐसी पल्सेस हैं या ऐसी वेजिटेबल सीरियल्स हैं जो कि फेमस है? ओके, तो आप कह सकते हैं अगर कोई आपके इलाके में लगने वाला कोई ऐसा अनाज है जो बहुत जगह पर, बहुत देशों में, या फिर आप कह सकते हैं आपके देश में कोने कोने तक वो प्रसिद्ध है, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, हमारे इलाके में एक मड़ुआ रॉ क्रॉप्स होती है, ठीक है, तो वे क्या है, वे बहुत ज़्यादा फेमस है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट. ओके, सो यू कैन से मड़वा इज़ फेमस अक्रॉस द country. Okay, madwa cereal is famous across the country. All right students, now next, कैन यू रिकग्नाइज दीज ग्रेन्स? ओके, तो क्या आप इनको पहचान सकते हैं? यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे कुछ ग्रेन्स दिए गए हैं, तो क्या आप इनको पहचान सकते हैं स्टूडेंट्स? येस, ऑफ कोर्स. फर्स्ट वन, इजीली यू ऑल कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग्स. येस, दिस इज मेज. ओके, ये कौन सी अनाज है? मक्का. एंड सेकेंड वन स्टूडेंट्स, मस्टर्ड. ओके, सरसों, वीट. Okay, and this is bajra. All right, so you can recognize these grains. So if you can, so you can write, yes, I can recognize these grains. First one is maize, second one is mustard, third one is wheat, and fourth one bajra. All right students, now next, when times changed. Okay, जब समय बदला. ऑल राइट, या हम कह सकते हैं बदलाव क्या आया था. तो चलिए पढ़ते हैं. Over the years, many changes took place in the village. Some places could get water from the canal. They said the canal brought water from far away, where a dam had been built on a big river. Then electricity came. Switch on the button and there watch light. People found that only one or two crops like wheat and cotton got better prices in the market. So most farmers began to grow only these. Soon we old friends bajra and jowar and also vegetables, okay, were forgotten and dismissed even from Damji Bhai's field. Farmers even began to buy seeds from the market. People said
they were new kinds of seeds. So farmers did not need to store seeds from the old crop. Okay, so when times change, जब समय बदला, जब बदलाव आया, over the years many changes took place in the village. कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आ गए. Some places could get water from the canal. Okay, कुछ जगहों पर, कुछ गाँव में या कुछ स्थानों में कैनाल मीन्स नहर, नहर का पानी पहुंच गया. They said canal brought water from far away. वे कहते हैं कि कैनाल में पानी काफ़ी दूरस्थ स्थानों से लाया गया. ठीक है, वे कहते थे कि जो कैनाल जो है वे काफ़ी दूर स्थानों से पानी को लेकर आई है, नहरों से काफ़ी दूरस्थ स्थानों से पानी लेकर आया जाता है. वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर. ठीक है, तो दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए गए बांध से यह पानी लाया गया था कैनाल के द्वारा, नहरों के द्वारा. ओके, द इलेक्ट्रिसिटी केम, बिजली आ गई थी. ठीक है, तो ये सब बदलाव समय के साथ साथ काफ़ी वर्षों में होते गए. इलेक्ट्रिसिटी केम, बिजली आ गई. स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉच लाइट. ओके, सिर्फ बटन दबाओ तो लाइट आ जाती थी. पीपल फाउंड दैट ओनली वन और टू क्रॉप्स. ओके, अब लोगों को एक या दो तरह की फसलें अब लोग उगाने लगे. ठीक है, अब लोगों ने एक दो तरह की फसलें उगाने लगे, लाइक वीट एंड कॉटन, जैसे गेहूं और कपास. गॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट, क्योंकि इसकी कीमत मार्केट में बहुत अच्छी होती थी. ओके, सो मोस्ट फार्मर्स बिगिन टू ग्रो ओनली दीज. तो ज़्यादातर किसान केवल इन दो फसलों को ही उगाया करते थे. Soon we old friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed. Okay, और जल्दी ही वहाँ पर लोग क्या करने लगे, हाँ, जो उनकी सिर्फ दो ही फसलों को वो उगाते थे, गेहूं और कपास को, तो इसलिए तो वो कहता है कि जो मेरे पुराने दोस्त बाजरा और ज्वार थे और जो सब्जियां थी. तो किसानों के ज़्यादा गेहूं और कपास लगाने के कारण जो अन्य फसलें थी जैसे बाजरा, ज्वार और जो सब्जियां थी वे धीरे धीरे वहाँ से हटने लगी. मीन्स कि वहाँ पर अब ये चीज़ें नहीं लोग बोने लगे. ओके, सून वी ओल्ड फ्रेंड्स, जल्दी ही हम पुराने दोस्त बाजरा और ज्वार एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स, और सब्जियां भी वर फॉरगटन एंड डिसमिस्ड, लोग उनको भूल गए और उनकी छुट्टी हो गई. मीन्स कि अब खेतों में इन फसलों को नहीं बोया जाने लगा. ओके, इवन फ्रॉम दामजीज भाई फील्ड्स, बल्कि दामजी भाई के खेतों में भी अब ये फसलें नहीं होने लगी. ओके, फार्मर्स इवन बिगेन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट, और जो किसान थे अब वे बाजारों से सीड्स यानी बीजों को खरीदने लगे. ठीक है, अब किसान बीजों को भी अब कहाँ से खरीदते थे, बाजार से, क्योंकि अब वे उसे अपना स्टोर नहीं करते थे. पीपल सेड दे वर न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स. ओके, सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप. पीपल सेड, लोग कहते थे, दे वर न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स. ठीक है, ये नई तरह के बीज हैं. सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप. तो इसलिए जो किसान थे उनको पुराने फसलों से बीजों को रखने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, तो लोग कहते थे कि नई तरह के बीज हैं, अब किसानों को पुराने बीज रखने की ज़रूरत नहीं थी. ऑलराइट, तो इतना सारा बदलाव समय के साथ साथ आता रहा. Now people in the village cooked and ate together only on very special days. As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields. When the seeds have changed, how could food ever taste the same? Okay, now people in the village, अब गाँव में लोग कुक्ड, खाना पकाते थे, एंड एट टुगेदर, और एक साथ खाते थे, ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज, केवल खास मौक़ों पर ही. ठीक है, अब खास मौक़ों पर ही लोग एक साथ खाना पकाते और एक साथ खाना खाते थे.
As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields. As they ate, जैसे ही वे खाना खाते तो they would remember, तो वे याद करते how tasty the food used to be in the past. तो वे past में means कि पहले बनाए गए खाने को, पुराने खाने के स्वाद को याद करते. Fresh from the field, जो कि खेतों से ताज़ा आता था. ठीक है. When the seeds have changed, अब जब बीज ही बदल गए, how could food ever taste the same? तो जब बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले. फिर बाजार से खरीदी सब्जी या फिर अनाज घर से ताज़ी सब्जी का मज़ा थोड़ी दे सकते हैं. ओके, सो व्हेन द सीड्स हैव चेंज्ड, तो जैसे ही बीज बदल गए, हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम, तो कैसे भोजन पहले जैसा ही स्वाद देता. ओके. Damji Bhai was getting old. His son Hasmukh looked after from the fields and the family. Hasmukh was making a lot of money from farming. He rebuilt the old house. He brought new machines for farming. He used an electric motor to pump water. He bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plow the field. The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. Okay. दामजी भाई was getting old. अब दामजी भाई भी, old means बूढ़े. ठीक है. अब दामजी भाई भी बूढ़े हो गए थे. ओके. His son हसमुख looked after the fields. अब उनका पुत्र हसमुख खेतों की देखभाल करता था. looked after means देखभाल करना, and the family और परिवार की. ठीक है. तो दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे. अब उनके बेटे हसमुख ही परिवार को और खेतों की देखभाल करते थे. हसमुख वॉच मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग. हसमुख ने खेतों से, ठीक है, कृषि से, खेती से खूब मुनाफा कमाया. बहुत ज़्यादा उसने पैसे कमाए. ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस. उसने पुराने घर को फिर से बनाया. ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग. और वह खेती के लिए नई मशीनों को लेकर आया. ही यूज्ड इट एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर. ओके. और उसने इलेक्ट्रिक मोटर लगाई. पंप वाटर मीन्स पानी को निकालने के लिए उसने एक बिजली का पंप भी लगाया. ठीक है. उसने पानी के लिए एक बिजली का पंप लगाया. ही बॉट अ मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी ईजीली. और उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी ताकि वह शहर ईजीली मीन्स आराम से जा सके. एंड ऑल्सो अ ट्रैक्टर टू प्लो द फील्ड. प्लो मीन्स खेत जोतना. ओके. और उसने एक ट्रैक्टर भी खरीदा खेतों की जुताई के लिए. The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. Okay. Tractor could do in a day. ट्रैक्टर एक ही दिन में जो कर सकता था, what the bullocks would take many days to do, जिसे कि bullocks यानी बैल बहुत सारे दिन लगाते थे जिस काम को करने में. ठीक है. तो क्या किया हसमुख ने खेती और घर की जिम्मेदारी वो संभालने लगा. ठीक है. अब एक खेती की भी और घर की, परिवार की भी जिम्मेदारियां लेने लगा, उनकी देखभाल करने लगा. हसमुख खेती से अब बहुत अधिक मुनाफा कमा रहा था. ओके. उसने अपने पुराने घर को फिर से रिबिल्ड किया, नया बनाया. और खेती में भी वे नई नई चीज़ें लेकर आया. पानी के लिए उसने बिजली का पंप लगाया. शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली ताकि वह आसानी से शहर में जा सके. और ज़मीन जोतने के लिए ट्रैक्टर भी उसने खरीद लिया. जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते थे, मैनी डेज लगते थे, वह काम ट्रैक्टर अब कुछ ही समय में, एक ही दिन में कर देता था. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हसमुख would say, now we are farming wisely. Okay. Hasmukh would say, now we are farming wisely. We grow only what we can sell in the market at a good price. With profits from our fields, we can improve our life. We can make progress. Okay.
हसमुख वुड से, हसमुख कहता था, ना वी आर फार्मिंग वाइजली। ओके, वाइजली मीन्स सोच समझ कर, बुद्धिमत्ता से। अब हम खेती सोच समझ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम खेती को क्या करेंगे, हम बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। ओके, हम केवल उन्हीं चीज़ों को बोते हैं, ग्रो करते हैं, जिसकी बाजार में अच्छे दाम होते हैं, अच्छी कीमत में जो बिक जाता है। ठीक है, हम केवल उसको ही उगाते हैं जिसे हम बाजार में अच्छे दामों में बेच सकें। विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ। और हमारे खेतों से जो हमें मुनाफा मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उससे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव मीन्स बेहतर बना सकते हैं। वी कैन मेक प्रोग्रेस। ओके, और अब हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। प्रोग्रेस मीन्स तरक्की करना। ठीक है, अब हम ज़्यादा विकास, ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स, आई एंड द अदर सीड्स had our doubts. Is all this really progress? There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks. After the tractor has come, even people who worked on the fields are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? Okay. Lying forgotten in the wooden box. अब बॉक्स में पड़े रहना, लाइंग मीन्स पड़े रहना, अब बॉक्स में पड़े रहना हम भूल गए थे। ठीक है, आई एंड अदर सीड, मैं और अन्य बीज, हैड अवर डाउट्स, अब हमें शक था। इज़ ऑल दिस रियली प्रोग्रेस? ओके, कि क्या अब वास्तव में तरक्की हो रही है? हम तो सोचते ही रह गए कि यह कैसी तरक्की है। देयर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड्स लाइक अस एंड एनिमल्स लाइक बुलॉक्स। ठीक है, ये कैसी तरक्की है जब बीजों की भी आवश्यकता नहीं है और जानवरों की भी, जैसे बुलॉक हैं, बैल हैं, इनकी भी आवश्यकता नहीं है। तो ये कैसी तरक्की है? आफ्टर द ट्रैक्टर हैज केम, जब से ट्रैक्टर आया उसके बाद, इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स, जो लोग खेतों में काम करते थे, आर नो लॉन्गर नीडेड, अब उनकी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वे भी क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। तो क्या ये वास्तव में तरक्की है? क्या ये वास्तव में विकास है? हाउ विल दे अर्न मनी, अब वे पैसा कैसे कमाएंगे? व्हाट विल दे लिव ऑन, और वे अपना जीवन कैसे चलाएंगे? उनको तो इन ट्रैक्टर ने और इन बाजार में मिलने वाले बीजों ने उसको तो क्या कर दिया, उन सबको बेरोजगार कर दिया है। ठीक है, तो बीज कहते हैं कि मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या ये वास्तव में तरक्की है। ओके, इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस? ऑल राइट। और बीज कहते हैं कि हम तो सोचते ही रह गए, यह कैसी तरक्की है, हमारी और बैलों की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया है। जो लोग पहले खेत में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते थे, अब वे भी एक साथ काम नहीं करते, क्योंकि उतने लोगों की अब आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए बीज कहते हैं कि क्या यह वास्तव में तरक्की है ना स्टूडेंट्स? ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. Tomorrow I will be back with this question answer. Okay, so now students, revise your work. Take care, be safe, bye bye, have a nice day.